Today, right now, we are in the place where Savitribai Phule and Mahatma Jyotibai Phule started the school for untouchables. आज हम महात्मा फूले बाड़ा में हैं। यहाँ से महात्मा फूले ने अछूतों और महिलाओं के लिए पहला स्कूल शुरू किया था। Really, I am very much frustrated to not talk more about how our people are fought against the Brahminism. तो हमारे लोगों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ किस किस तरीके का कितना संघर्ष किया है, ये बार बार जब बताना होता है तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। Wherever we went last so many 33 days, 31 days, we went all the Mahapurush, wherever we went to the states, a lot of Mahujan Mahapurush fought against the Brahminical system and Brahminical forces. Still now our people not ready to understand means, I don't know how we can change the society. तो पिछले 30-32 दिनों से हम देख रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं हमें कोई न कोई महापुरुष मिल रहे हैं जिन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष किया है, लोहा लिया है। इसके बाद भी अगर हमारे लोगों को ये समझ में नहीं आता तो फिर कैसे समाज को हम कैसे बदलेंगे, कैसे बदल पाएंगे? Still now, some people are saying that there are some good Brahmins are there. We have to accept those Brahmins. I don't know. Actually, they are having their own dharam. They are according to their dharam. They are following. Our Mahapurush like Mahatma Savitribai Phule, Mahatma Jyotibai Phule, Chhatrapati Shahuji Maharaj, Periyar, Kanchiram. A lot of Mahapurush had given a different philosophy against their Brahminism. Still now, your people are saying according to their philosophy, they are following. Even though our people are saying that some good Brahmins are there. I don't know why our people are saying like that. तो इतना सब कुछ होने के बाद आज भी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ अच्छे ब्राह्मण भी होते हैं। एक्चुअली जो ब्राह्मण है उनकी अपनी विचारधारा है, वो अपने विचारधारा के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों की अपनी विचारधारा है, तो हमें उसको अपनाना चाहिए, उस पे काम करना चाहिए। लेकिन हम उस पे काम ना करके हम ब्राह्मणों में अच्छे बुरे ढूंढते फिरते। I heard from Kanshiram ji that one nimbu drop of water enough to finish all the doodh. The one person is more than enough to finish all the shudras. तो मैं कांसीराम जी की एक बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि एक बड़े बर्तन में रखा दूध, एक नींबू का एक बूंद रस उसको फाड़ने के लिए काफी है। इसी तरीके से पूरे सोसाइटी को एक ब्राह्मण प्रदूषित करने के लिए पर्याप्त। At the same time, Periyar also was saying, I heard about from one book, I came to know through the Periyar's book, that if you see the Brahmin at the snake at the same time, leave it snake, finish the Brahmin. The Periyar was saying like that. एक किताब में मैंने पढ़ा है, पेरियार ने एक जगह कहा है कि अगर एक रास्ते पे ब्राह्मण और सांप दोनों साथ साथ मिल जाए तो सांप को छोड़ दो, जाने दो, ब्राह्मण को वहीं कुचल दो। क्योंकि जो सांप होता है वो अगर डसता है तो किसी एक व्यक्ति को डसता है, एक व्यक्ति का नुकसान करता है। जो ब्राह्मण होता है वो पूरे समाज को प्रदूषित करता है, पूरे समाज के लिए नुकसानदायक। इसलिए ज्योतिबा पेरियार was saying, ब्राह्मण को सांप से भी ज्यादा खतरनाक। and also Guru Gobind Singh was saying that if you apply the tail and you put it in the till, so if you take out of your hand from the till, you cannot find a good Brahmin. गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है कि आप एक तेल के बर्तन में अपना पूरा हाथ डालो, फिर उस बर्तन को तिल से भरे बर्तन में डाल दो, तो आप तेल लगे हाथ में जितने तिल चिपकेंगे उतनी बार भी ब्राह्मण अगर
कहे कि हमारा विश्वास Good. करो, यू बिलीव मी हाँ, सो यू डोंट बिलीव, है उतनी बार भी अगर कोई ब्राह्मण कहे कि हमारा विश्वास करो, तब भी तुम ब्राह्मण का विश्वास मत करना, क्योंकि वो हमेशा षड्यंत्र ही करता है। so how it is not as simple, we could not say take it as a simple word. Out of experience, out of understanding about their dharam, our Mahapurusha told like that. Here also, you see, when Savitribai Phule went to school, the Brahmins never tolerated. They started to throw the dung, cow dung to her. So after that, Savitri, our Mahatma Jyotiba Phule given two sarees. First cloth for taking all the dungs in one saree. When you reach there, you change the other saree, and when you after finish the your education, you wear the another saree that already damaged by the cow dung. So how our people, how our forefathers faced such a torture, discrimination in this society. तो हमारे महापुरुषों ने जो ये बातें कही, ये सिर्फ बातें ही नहीं, ये उनका खुद का अनुभव भी है। जो उन्होंने इस ब्राह्मणिकल जो समाज है, ब्राह्मणवादी समाज है, उसमें ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा उन्होंने जो सहा, वो अनुभव उन्होंने व्यक्त किया। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ जब माता सावित्रीबाई फूले पढ़ाने आती थी, तो यही वो ब्राह्मणवादी लोग थे जो गोबर उठा के उनको मारते थे। गोबर मारने के कारण ज्योतिबा फूले ने कहा कोई बात नहीं, आप 2 साड़ियां लेके जाओ, एक पहन के जाओ, एक अपने बैग में लेके जाओ। तो जब सावित्रीबाई फूले स्कूल में आती थी तो एक साड़ी उनकी गंदी हो जाती थी, क्योंकि गोबर मार मार के, मिट्टी मार मार के गंदी कर देते थे। तब फिर वो आके उसको बदलती थी, दूसरी जो बैग में डली साड़ी है उसको निकालती थी, उसको पहनती थी, फिर बच्चों को पहनाती थी, पढ़ाती थी। इसके बाद जब जाती थी तो फिर साड़ी बदल के जाती, क्योंकि शाम को जाते वक्त भी वो मारते थे। तो ये जो ब्राह्मणवादी समाज है, ब्राह्मणवादी लोग हैं, कितना कुछ सहा है हमारे महापुरुषों ने, इनकी क्रूरता को, इनकी अमानवीयता। Still now you people are not ready to understand about who is your enemy and who is your friend means. That is not a problem with your enemies. The problems are with you only. इसके बावजूद अगर आज भी आप लोग ये समझने को तैयार नहीं होते हो कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन, तो इसका मतलब ये है कि समस्या आपके दुश्मन में नहीं है, समस्या आपके अंदर, कमी आपके अंदर। So our Phule's message, our Savitribai Phule's message and Mahatma Jyotiba Phule's message, he clearly defined about who is our enemy. This land also donated by Muslims. They understood about our problem. Muslim brothers understood about our Shudras problem, scheduled caste problems. So that's what those people, that time, those people handed over a very important land in this area. Why they had given to our people? तो हमारे जो महापुरुष हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, इन्होंने स्पष्ट तौर पे समझा और लोगों को बताया कि आपका दुश्मन कौन है। यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जगह एक मुस्लिम भाई उस्मान शेख जी ने ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले को दी, जो कि वो मुस्लिम समुदाय से आते। उन्होंने जो दलित, पिछड़े, अछूत थे, उनकी समस्या को मुसलमान समझ गए, लेकिन ये ब्राह्मणवादी लोगों ने नहीं समझा। मुसलमान उस्मान शेख, उस्मान भाई ने ये जगह दी। यहाँ पे जो बच्चियों के लिए रात्रि स्कूल भी, ये जो बिल्डिंग है, यहाँ रात्रि स्कूल चलता था। बाद में यहाँ उस्मान शेख की जो बहन है फातिमा शेख, बीबी फातिमा शेख, उन्होंने सहयोग किया पढ़ाई में सावित्रीबाई जी के साथ।
Phule is a weapon in front of us. Mahatma Savitribai Phule is a weapon for us. We use the weapon to finish, not only finish the enemy, we have to finish our chamchas also. So in this I conclude my speech. आज बहुजन द्रविड़ समाज के सामने महात्मा ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्री बाई फूले हमारे सामने एक सशक्त हथियार है, हथियार है, वैचारिक हथियार। इनका सदुपयोग करके हम न सिर्फ अपने वैचारिक दुश्मनों को समाप्त कर सकते, बल्कि समाज के चमचों को भी समाप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय कांसीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत, जय महात्मा ज्योतिबा फूले, जय माता सावित्रीबाई फूले, जय सावित्रीबाई फूले। जय सावित्रीबाई।